ناول جھوک سیال مصنف عبداللہ وسیم باب دوم جھوک سیال کی کچی سڑک ایپیسوڈ نمبر 4 صبح کا سورج اپنی تمام تر روشنی سمیت آسمانی دنیا پر چمک رہا تھا۔ سفید بادلوں کی ٹولیاں پورے آسمان پر تیراکی کر رہی تھیں۔ جب کوئی ٹولی گزرتی تو عقب میں آسمان کی صاف رنگت واضح ہو جاتی۔ ہوا کے دم سے کھیت کھلیانوں میں فصلیں رقص کر رہی تھیں۔ کچھ کمزور پتے ہوا کی وجہ سے ٹوٹ کر کہیں کے کہیں چلے جاتے۔ فصلوں کے ارد گرد کاریز بنائی گئی تھی جو فصلوں میں آب پاشی کے لیے کام آتی تھیں۔ جھوک سیال کے کسانوں نے فصلوں کو صاف ستھرا رکھا ہوا تھا۔ گاؤں میں گندم اور چنے کی کافی فصلیں تھیں جن سے پورا گاؤں کھانا کھاتا تھا اور باقی کا مال شہر جا کر بیچا جاتا تھا۔ ہرے بھرے کھیتوں میں کسانوں کے چلنے کے لیے چھوٹی چھوٹی راہیں بنائی گئی تھیں جن سے کسانوں کو فصلیں کاٹنے میں آسانی رہتی تھی۔ پانی بھی انہی راہوں سے گزر کر پورے کھیت کو سیراب کرتا تھا۔ ہل چلانے کے لیے بیل مختص کیے گئے تھے۔ کچھ دور دراز کے گاؤں میں کسانوں کے پاس ٹریکٹر بھی تھے، لیکن جھوک سیال میں ٹریکٹر خریدنا ابھی کسی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ ویسے بھی بیل یہ کام اچھے طریقے سے کرتے تو ہیں، پھر کیا ضرورت ہے اس مشین کی؟ کسان خود کو تسلی دیتے ہوئے کہتے تھے۔ گندم اور چنے کے علاوہ سبزیوں کی فصلیں بھی تھیں۔ جب کبھی صبح سویرے ساگ چنا جاتا تو دیکھنے والے کو یہ منظر بہت بھلا لگتا تھا۔ کوئی شہری یہاں آ جائے تو اس کے لیے یہ سب نیا ہوگا، لیکن گاؤں میں صبح سویرے ہی یہ سب کام شروع ہو جاتے تھے۔ عورتیں صبح سویرے ہی ساگ خرید لیتی تھیں اور سارے دن کی محنت کے بعد مزیدار سا ساگ گھر والوں کے سامنے رکھا جاتا تھا۔ گاؤں میں سردیوں کا مشہور کھانا ساگ ہی تھا۔ اماں بی کا ساگ بہت مشہور ہوا کرتا تھا۔ کچی گلیوں میں بچے بھاگ رہے تھے، ان کے بھاگنے سے اٹھنے والی مٹی بھی بھلی لگتی تھی۔ تانگے والے چچا نے ان کو اونچی آواز دے کر بھاگنے سے روکا، لیکن بچوں نے ایک نہ سنی۔ صحیح کہتے ہیں کہ مدرسوں میں بچوں کو بھیجو ایسے بچوں کو جو صبح ہوتے ہی کھیل کود میں لگ جاتے ہیں۔ گھوڑوں کی لگامیں کھینچے تانگا آگے کو روانہ کیا، بچے ادھم مچاتے دوسری گلی میں چلے گئے۔ دوسری گلی میں چرواہا ہاتھ میں چھڑی پکڑے بکریوں کے پیچھے چل رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، شاید وہ نگران تھا۔ جب کبھی کوئی بکری ادھر ادھر چلی جاتی تو چرواہا ایک مخصوص آواز نکالتا اور اپنی چھڑی سے بکری کو مارتا تو وہ سیدھا چلنے لگتی۔ یہ چرواہا روز صبح سویرے یا شام میں بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ جھوک سیال کا چکر لگایا کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ جھوک سیال سے باہر بھی چلا جاتا تھا۔ آج وہ گاؤں میں ہی تھا، وہ کب گاؤں سے باہر جائے گا؟ گاؤں میں بنے مٹی کے گھر کافی مضبوط تھے۔ گاؤں میں سارے گھر ایک ہی منزلہ تھے، لیکن صرف ایک گھر ایسا تھا جو مٹی کا تھا، نہ ہی وہ ایک منزلہ تھا۔ وہ کسی پرانے بادشاہ کے محل کی مانند بنایا گیا تھا۔ گاؤں میں سب اسے حویلی کہتے تھے۔ وہ حویلی کتنے سالوں سے بند پڑی تھی اور کسی نے کبھی بھی اسے اندر سے نہیں دیکھا تھا۔ جھوک سیال کے بزرگ بتاتے ہیں کہ کافی سالوں پہلے ایک بادشاہ یا رئیس نے یہ حویلی بنائی تھی، لیکن وہ کبھی یہاں رہنے نہیں آیا تھا۔ انہوں نے مزدوروں کو کام کرتے دیکھا تھا، لیکن جب تعمیر کا کام مکمل ہوا تو وہ سب اس حویلی کو بڑا سا تالا لگا کر چلے گئے۔ اس کے بعد وہاں کوئی نہیں آیا تھا اور گاؤں والے کافی اشتیاق سے اس حویلی کے دوبارہ کھلنے کا انتظار کرتے رہے تاکہ وہ اس حویلی کو اندر سے بھی دیکھ لیں، مگر ایسا نہ ہو پایا۔ کہتے ہیں کہ حکومت بدلنے کی وجہ سے یہ بند ہو گئی ہے، نہ جانے اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے حویلی پر توجہ دینا ہی چھوڑ دی اور اب تک یہ حویلی بند ہے۔ نہ جانے کب کھلے گا یہ تالا، شاید بہت جلد، کیونکہ جھوک سیال میں ایسا بہت کچھ ہونے والا تھا جو جھوک سیال کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ بہت کچھ جو کبھی نہیں ہوا تھا، کبھی بھی نہیں۔ چھوٹے سے گھر کے صحن میں اماں بھی بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھ میں سوئی تھی جس میں وہ لاکھ جتن کے باوجود دھاگا نہیں گزار پائی تھی۔ وہ چارپائی پر بیٹھی تھی۔ صحن میں 2 چارپائیاں تھیں اور ان کے درمیان ایک چھوٹا سا میز رکھا ہوا تھا جس پر ایک گلاس اور جگ رکھا ہوا تھا۔ اوپر چھت مکمل نہیں تھی، بس ایک مربع صورت جگہ کھلی تھی۔ اسے پنجابی میں مگ کہتے ہیں۔ اس مگ کی وجہ سے شام ڈھلنے تک صحن میں روشنی رہتی تھی۔ بیڑا ہی غرق ہو جائے، اماں بھی نے 50ویں کوشش ناکام جانے کے بعد کہا۔ وہ بھی تنگ آ گئی تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ ایک ہی بار میں دھاگا گزار لیا کرتی تھی اور اب بس عمر کا تقاضا تھا۔ عمر؟ اب ان کی عمر رہ ہی کتنی گئی تھی؟ اتنے میں دروازے کی زنجیر بجی۔ اماں بھی ایک بار پھر کوشش کرنے ہی لگی تھی لیکن رک گئی اور نظر اٹھا کر دروازے کو دیکھا۔ کھلا ہوا ہے۔ اماں بی نے کچھ اونچی آواز دے کر کہا۔ اماں بی کی آواز سن کر مہمان نے دروازہ کھول دیا۔ اماں بی نے آنکھیں میچ کر غور سے دیکھا۔ وہ قطب الدین تھا۔ السلام علیکم اماں بی، قطب الدین نے اندر آتے ہی سلام کیا۔ ہائے قطبی، ماں صدقے ماں واری۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، میرا شہزادہ آیا۔ اماں بھی اسے دیکھتے ہی چارپائی سے اٹھی اور صدقے واری جاتے ہوئے بہت محبت بھرے انداز میں بول رہی تھی۔ قطبی مسکرا دیا اور پیار لینے کے لیے سر جھکایا۔ اماں بی نے اس کے جھکے سر پر مامتا بھرا بوسہ دیا۔ میرا پتر، آج کتھوں اماں بی دی یاد آ گئی؟ میرا بیٹا، آج کہاں سے اماں بی کی یاد آ گئی؟ وہ شکوہ کرتے ہوئے بولی۔ قطبی ہنوز مسکراتا رہا۔ اماں بی، بس کاموں میں مصروف رہتا ہوں۔
परसों शहर गया था वरना आ जाता, कुतुबुद्दीन ने वजह बताई। चल इत्थे बैठ जा। चलो इधर बैठ जाओ, अम्मा बी ने चारपाई की तरफ इशारा करते हुए कहा। कुतुबी आगे बढ़कर चारपाई पर बैठ गया। सामने वाली चारपाई पर अम्मा भी बैठ गई। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? आपने भी चक्कर नहीं लगाया कि अगर कुतुबी नहीं आया तो मैं खुद जाकर पूछ लूं? अब अम्मा बी को जवाबी शिकवा सुनना पड़ा था। इस बार वो हंसती जैसे पहले कुतुबी हंसा था। चल वे, मां नाल आडे लांदा है, चलो मां के साथ मुकाबला लगाते हो, वह हाथ झाड़ते हुए बोली। ऐन मुमकिन था कि अगर कुतुबी करीब होता तो ये चपत ही होती। उनका जवाब सुनकर कुतुबुद्दीन का कहकहा छोटे से सहन में गूंजने लगा। देखा, अब अपनी दफा ऐसे कह रही हैं, वो हंसकर बोला। चल वे, मैनू पता है तेरे अब्बा ने मना किया होगा। मुझे पता है तुम्हारे अब्बू ने मना किया होगा। उन्होंने करमदीन का सोचकर ही सर झटका। ओनू ही मैं चंगी नहीं लगती, यही गल है ना? उसे मैं अच्छी नहीं लगती, ऐसी ही बात है ना? अम्मा भी ने कहा। नहीं अम्मा भी, मुझे तो अब्बा ने खुद भेजा है आपकी तरफ। कल भी कह रहे थे कि अम्मा भी से मिलाऊं, कुतुबुद्दीन ने वजाहत पेश की। वो अपने बाप की मोहब्बत में मजबूर था, सबको उनके हवाले से सफाइयाँ देता रहता था। कभी अम्मा भी को, कभी फरखंदा चची को, तो कभी किसी और को। जब कोई औलाद के सामने माँ बाप की बुराई करे तो फितरी मोहब्बत के बायस औलाद को ये गरां गुजरती है, चाहे माँ बाप में वो बुराई हो भी। वो मोहब्बत में मजबूर होकर कभी यकीन नहीं करते और कभी सबको उनकी तरफ से सफाइयाँ ही देते रहते हैं। माँ बाप से फितरी मोहब्बत बहुत मजबूत होती है। बस रहन दे कुतबी पुत्र, मैनू भी चंगी तरह तेरे प्यो दा पता है। बस रहने दो कुतबी बेटा, मुझे भी तुम्हारे अब्बू का बहुत अच्छी तरह पता है, अम्मा भी नाक मुंह चढ़ाकर बोली। अब जो बंदा मुंह पर आपको जहानुमी कहता हो उसके लिए शायद ही आपके दिल में कोई अच्छी बात हो। अम्मा बी का मामला भी यही था। अच्छा अम्मा बी, कुतबी ने हार मानते हुए कहा। इतने दिनों बाद मैं आपके घर आया हूँ, आपने तो झूठे मुँह चाय भी नहीं पूछी। उसने बात का मौजू बदला। हाय, मैं भी पागल हो गई। अम्मा बी ने अपने माथे पर चपत लगाई। रुक जरा। वो उठी और सहनोबूर करते हुए अंदर किसी कमरे में चली गई। कुतुबुद्दीन वहीं बैठा रहा और इर्द गिर्द देखता रहा। इस सहन में वो बचपन में बहुत खेला था। उसकी अम्मी अक्सर अम्मा बी के घर आया करती थी तो वो भी साथ ही होता था। जितनी देर वो यहाँ रहती, कुतुबुद्दीन दूसरे बच्चों के साथ उनके सहन में खेलता था। उन दूसरे बच्चों में ज़ेबुन्निसा भी थी। ज़ेबुन्निसा, ज़ेबो। उसे ज़ेबो याद आ गई, फिर उसे कल की मुलाकात याद आ गई, फिर उसे ज़ेबो की आंखें याद आ गई और फिर उसे उन आंखों में चमकते दिए भी याद आ गए। वो फिर से इस बारे में सोचने लगा। कुतुबुद्दीन इतना भोला नहीं था कि उन चमकते दियों का मतलब ना समझ सके। उसे सब समझ आता था। बस बस ये दिए उसने पहली बार देखे थे। हैरत की बात सिर्फ ये थी कि ये दिए उसने ज़ेबो की आंखों में देखे थे। ऐसा पहले नहीं हुआ था। आखिर ज़ेबो ने ऐसा क्यों किया? वो सोच में पड़ा रहा। एले पुत्र, ये लो बेटा। मामा बी ने प्लेट पे रखा चाय का कप कुतबी के सामने किया तो वो ज़ेबो के ख्याल से बाहर आया। उसने प्लेट पकड़ ली। अम्मा भी सामने चारपाई पर बैठ गई। बड़े दिनों बाद आपके हाथ की चाय पीने लगा हूँ, कुतुबुद्दीन ने घूंट भरने से कबल कहा। अम्मा भी मुस्कुरा दी। ले दस, रस ते ले आई नहीं? लो बताओ, रस तो लाई नहीं। वो याद आने पर एकदम उठी और अंदर से रस लेने चली गई। कुतुबुद्दीन को चाय रस बहुत पसंद थे। अम्मा भी को भी ये बात पता थी। खुद भी उनके अंदाज पर मुस्कुरा दिया। उसकी अम्मी को भी चाय के साथ रस पसंद थे। अम्मा भी उनके लिए रस मंगवा कर रखा करती थी और अब जुबैदा के इंतकाल के बाद भी जब कुतुबुद्दीन उनसे मिलने आता वो उसे चाय के साथ रस देती थी। हाय, वापस आकर रस मेज़ पर रखे और चारपाई पर बैठ गई। आप रस लाना नहीं भूलती, कुतुबुद्दीन ने कहा। किंज भूला? तेरी माँ बड़ी याद आंदी है कुतबी। हाय मेरी बच्ची, अल्लाह जन्नता विच वसाए। कैसे भूलूं, तुम्हारी माँ बहुत याद आती है कुतबी। अल्लाह जन्नतों में बसाए उसे। अम्मा बी की तो आंख भर आई। जुबैदा के साथ उनका काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा था। बस अल्लाह की जो रज़ा। ऐसे मौक़ों पर और क्या जवाब हो सकता है? कुतुबुद्दीन का दिल भी उदास हो गया था। हाय पुत्र, मैं ते रोज़ ओदे दुआवां करके सोनी आ, ओदे वास्ते दुआवां करके सोनी आ। इन्नी चंगी सी जुबैदा, सक्की माँ समझती सी मैनू, बड़ी इज्जत करती सी। बेटा मैं तो रोज़ उसके लिए दुआएं करके सोती हूँ। बहुत अच्छी थी जुबैदा, सगी माँ समझती थी मुझे, बहुत इज्जत करती थी। अम्मा बी ने बताया। सही बात है अम्मा बी। अब्बा ने कभी आपके बारे में कुछ कहना तो अम्मी ने फ़ौरन रोकना। कहती थी अम्मा बी को कुछ ना कहें, वो मेरी माँ की तरह है। कुतुबुद्दीन ने बताया और रस को चाय में डिबोकर खाने लगा। अम्मा बी ने आंसू साफ किए। आहो, तेरे प्यो ने ओदी कदर नहीं की थी, हीरा सी जुबैदा। हाँ, तुम्हारे बाप ने उसकी कदर नहीं की, हीरा थी जुबैदा, अम्मा बी ने कहा। कुतुबुद्दीन शर्मिंदा हो गया। अम्मा भी आप क्यों गिला करती हैं अब्बा के बारे में? आप जानती ही हैं उन्हें। कुतबी ने बेबसी से कहा। अब वो कितनी सफाइयाँ दे सकता था? क्या वो ऐसे लोगों के सामने अपने बाप को अच्छा साबित कैसे कर सकता था जो उसकी फितरत से वाकिफ थे? पुत्र मैनू बड़ा दुख है। तेरे प्यो दे नाल बड़ा औखा वेला लंघिया ओहदा। उन्हें कदी शिकायत नहीं की करमू दी। सबर दे नाल सारी हयाती लंघ गई।
बेटा मुझे बड़ा दुख है, तुम्हारे अब्बू के साथ बहुत मुश्किल वक्त गुजरा है उसका। उसने कभी शिकायत नहीं की करमदीन की। बड़े सब्र से सारी जिंदगी गुजर गई। अम्मा बी ने उदास लहजे में कहा। वो कभी कभी करमदीन को करमू कहती थी, खासतौर पर जब उन्हें करमदीन पर बहुत गुस्सा आता था। करमदीन को करमू सिर्फ अम्मा भी ही कह सकती थी, किसी दूसरे में ऐसी गुस्ताखी की जरूरत कहाँ थी। कुतुबुद्दीन लाजवाब सा हो गया, जानता था अम्मा भी सच कह रही हैं। उसने चाय खत्म करके मेज पर रख दी। सुबह की ताजगी धीरे धीरे नापैद होती जा रही थी। कुतुबुद्दीन को यहाँ आए काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन अभी उसकी और अम्मा बी की बातें ख़त्म नहीं हुई थी। वो उनसे और बातें करना चाहता था, ऐसे जैसे ये कुतुबुद्दीन और अम्मा बी की आखिरी मुलाकात हो। क्या इसके बाद उनकी मुलाकात नहीं होगी? शायद, शायद ही। सुबह की धूप उसके कमरे में लगे पर्दों के कहीं दरमियान से गुजरकर सीधा उसके चेहरे पर पड़ी। वो कसमस आई और करवट बदल ली। इस दौरान उसकी नींद खुल चुकी थी। कुछ देर यूं ही आंखें बंद रखने के बाद उसने आंखें खोली। उसका सारा कमरा ही रोशनी में नहाया हुआ था। कमरे में सुबह की ताजगी भी फैली हुई थी। हाथ से जमाई रोकती वो उठ बैठी। बिस्तर से उठने से पहले उसने अपने सारे बाल समेट लिए थे। उसके बालों का रंग सुर्खी मायल था। दरवाज़ा हल्का सा बजा। खुला है। उसकी आवाज़ बारीक मगर प्यारी थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर आने वाली औरत उसकी माँ थी, मिसेस एडम्स। बालों को समेटकर जूड़े में कैद किए और जूड़े पर क्लिप लगाए, शॉल को कंधों के गिर्द लपेटे और अपनी गंदमी रंगत के बावजूद ऐसी चाल अपनाए हुए अंदर आईं कि देखने में उनकी शख्सियत बहुत अच्छी लग रही थी। गुड मॉर्निंग मरीना, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग, मरीना ने भी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दिया। आप बहुत अच्छी लग रही हैं मॉम। ओह शुक्रिया बेटा, वो हंसी। आ जाओ नाश्ता कर लो। कैसी तबीयत अब तुम्हारी? रात को अचानक ही बुखार हो गया तुम्हें। मैंने देखा था तुम्हें, लेकिन तुम सो रही थी, उन्होंने कहा। वो मरीना के अकब में खड़ी थी और मरीना उन्हें आईने की मदद से देख पा रही थी। हाँ जी ठीक हूँ, सर बहुत दर्द कर रहा था। उसके चेहरे से वाज़ेह था कि उसे काफ़ी सर दर्द रहा। अब ठीक हूँ, रात को मैंने मेडिसिन ली थी। चलो अच्छी बात है कि अब तुम ठीक हो। तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं, आ जाओ नाश्ता कर लो। मिसेस एडम्स ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जी मैं आती हूँ, उसने सरस बात में हिलाया। ओके, मैं और तुम आज मार्केट जाएंगी, मुझे अपने लिए कुछ जूड़े लेने हैं, वो बोली और उसे एक बार फिर नाश्ते का कहकर बाहर निकल गई। मरीना ने उन्हें जाते देखा और मुस्कुराई। मॉम और इनकी शॉपिंग, उसने कहा और आईने में देखकर हंसने लगी। उसकी मॉम को शॉपिंग पसंद थी और मरीना को शॉपिंग के नाम सुनकर उलझन होने लगती थी। आमतौर पर लड़कियों को शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है, लेकिन मरीना उनमें से एक नहीं थी। वो अलग थी। वो सिर्फ तब बाजार जाती थी जब बहुत ज़रूरी काम होता था। वो एक ही दुकान पर जाती थी और वहीं से सामान पसंद करके खरीद लेती। मॉम हैरान होती थी कि मरीना कैसी लड़की है जिसे शॉपिंग करना ही पसंद नहीं है। वो उससे पूछती भी तो मरीना आगे से हंस देती। अब जो हूँ सो हूँ, वो कंधे उचकाकर कहा करती थी। आज मार्केट जाना ज़रूरी था क्योंकि उन्हें झोंकसियाल जाने की तैयारी करनी थी। मरीना उठकर कमरे से बाहर चली गई। कमरे में धूप कहीं कहीं फैल चुकी थी। नईमा ने आज भी फजर की नमाज नहीं पढ़ी थी। भाई अब कौन सुबह सवेरे उठकर नमाजें पढ़े? नईमा उन लोगों में शामिल नहीं थी। उसकी अम्मी ने उसे बहुत बार उठाया था, मगर वो ढीठ बनकर सोई रही। खेस को मुंह से हटाया ही नहीं कि उठना कहीं कहीं उठना ना पड़ जाए। मालूम हो कोई लालटेन की रोशनी उसकी आंखों में पड़े तो उसकी नींद ही ना खुल जाए। नमाज ना पढ़ने की सारी एहतियाती तदाबीर वो कर चुकी थी। उठ जा लाशे, लाश उठ जल्दी कर। सूरज बेख सरते खलो गया। देखो सूरज सर पर आ गया। नईमा की अम्मी ने उसे उठाया। फजर तो सदियों पहले की बात है, अब तो सुबह भी आधी हो चुकी थी। सूरज अपने सवाल की तैयारी कर रहा था। अम्मी की ये अम्मी क्या है? वो बोली। सुकून से सोने भी नहीं देती। कब से सो रही है नईमा? खुदा का वास्ता उठकर बैठ। कोफ्त हो रही है तुझे देख देख कर। इतना सोती है, तौबा। ना नमाज की होश है ना रोजे की। सो सो कर घर में नहूसत फैलाई हुई है। उठ जा पोस्ती, जल्दी उठ। इस बार उन्होंने खेस ही घसीट लिया था। नईमा इतना बुरा मुंह बनाकर उठी कि बंदा क्या कहे। अम्मा तो बस मेरी नींद की दुश्मन है। वो बैठ गई, लेकिन चेहरे से साफ वाज़ेह था कि अभी दूर दूर तक उसका उठने का दिल नहीं करता था। कमरे में धूप भी तब आई थी जब अम्मा ने खिड़कियों पर से पर्दे पीछे किए। नईमा के बस में होता तो वह कमरे में खिड़की नाम की चीज़ बनाती ही ना, जिससे उसकी नींद में खलल आता हो। नईमा पुत्र, तू नहीं समझती, ये कोई जिंदगी नहीं है सारा सारा दिन यूं लाशों की तरह सोए रहना। सो सो कर क्या मिलना है? ना तुझे नमाज की होश है ना रोजे की। कोई डर खौफ नहीं है खुदा का, अम्मा ने कहा। वो उसके सामने बिस्तर पर ही बैठ गई। अम्मा, अब मैं रबीउल अव्वल में रोजे रख लूं जो मुझे रोजों का ताना दे रही है? नईमा चिढ़कर बोली। रोजे की बात बड़ी पकड़ ली, नमाज की तरफ नहीं आई। चल उठ, जोहर होने वाली है, उठकर नाश्ता कर। चल उठ, मर भी जा। अम्मा को फिर से गुस्सा आ गया था। नईमा बहुत ही ढीठ थी। ही रही हूँ जी, सत्ती सवेरे उठा दिया मुझे, वो सर झटक कर बोली। सत्ती सवेरे? फरखंदा ने हैरत से उसे देखा। तेरा भाई सत्ती सवेरे उठकर काम पर चला गया और तू दोपहर को भी नहीं उठ सकती, उन्होंने कहा। बीबा बच्चा है मेरा,
صبح نماز کے لیے اٹھتا ہے، مسجد جاتا ہے، پھر گھر آ کر قرآن پاک بھی پڑھتا ہے۔ تیری طرح سوئی قوم نہیں ہے۔ وہ فرحان کا نام بہت پیار سے لے رہی تھی۔ فرحان ان کا لاڈلا تھا کیونکہ اللہ نے فرحان ان کی جھولی میں کافی دعاؤں کے بعد دیا تھا۔ ویسے بھی وہ ایک اچھا بیٹا تھا، پانچوں نمازیں پڑھتا تھا اور فرخندہ اس بات سے بہت راضی تھی۔ ہاں بس مجھ میں ہی کیڑے ہیں، وہ کمرے سے باہر جاتے ہوئے بولی۔ زیبو سے ہی کچھ سیکھ لے، کیسی نماز کی فکر ہے اس بچی کو ماشاء اللہ، وہ بولی۔ اماں اٹھتے ساتھ ہی تانوں کی بارش شروع کر دی ہے۔ نیما کی آواز باہر سے آئی، وہ چپ کر گئی۔ وہ زیبو کو پسند کرتی تھی، کافی اچھی بچی تھی وہ، ان کی عزت کرتی تھی، نمازی تھی۔ فرخندہ کی نظروں میں وہی بچے اچھے تھے جو نماز کی پابندی کرتے تھے۔ وہ نیما کے نمازی نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ وہ اسے بہت سمجھاتی تھی لیکن نیما سمجھ کے ہی نہ دیتی تھی۔ کوئی بھی صرف باتیں سن کر نمازی نہیں بن سکتا۔ نمازی بننے کے لیے سب سے پہلے انسان کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ نماز صرف اللہ کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے۔ جس میں دل میں جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، اس کا نماز میں کیا دل لگے گا؟ اور مومن کے لیے تو نماز اس کے رب سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ نیما ابھی اس جذبے سے ناواقف تھی۔ زیبو ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ یہ کتاب ابا لائے تھے، اس میں دین کے حوالے سے باتیں لکھی تھی، نماز روزہ وغیرہ کے احکامات تھے۔ زیبو کو بھی دین کے بارے میں معلومات حاصل تھی۔ زیبو وہ چارپائی پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب اماں کی آواز آئی۔ اس نے کتاب سے نظریں اٹھا کر باہر دیکھا، پردہ تو ہٹا تھا لیکن اماں سامنے نہیں تھی۔ وہ کتاب بند کر کے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ ہاں جی؟ اماں پیڑھی پر چولہے کے سامنے بیٹھی تھی، پتیلی دیگچے میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ لکڑیوں کا جلنا کسی دل جلے سے کم نہ تھا۔ جا ذرا قطبی کو کہہ آ کہ دوپہر کا کھانا ہمارے گھر سے کھائے، وہ بولی۔ اماں کی بات تھی یا زیبو کے دل کا سکون کا ذریعہ؟ وہ خوشی ہو گئی۔ آج وہ پھر قطب الدین کو دیکھ پائے گی، آج پھر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ اچھا اماں میں ابھی جاتی ہوں، زیبو خوش ہوتے ہوئے بولی۔ اور اماں بھی کبھی کہا، بڑے دنوں بعد آج اچھا کھانا پک رہا ہے، کل تیرے ابے کو قطبی نے پیسے دیے تو میں نے مرغی منگوا لی، اب ہمارا بھی دل کرتا ہے اچھا کھانا کھائیں۔ آغاز جملے میں ان کا انداز خوشگوار تھا اور آخر تک آتے آتے اور حالات کا سوچتے ہوئے وہ انداز حسرت میں بدل گیا۔ کیا کریں، اب حالات ہی ایسے تھے، جتنا کماتے تھے لگ جاتا تھا، دال سبزی ہی آ جاتی تو بہت تھا، دال سبزی ہی آ جاتی تو بہت خوب تھا، گوشت کبھی کبھار ہی نصیب ہوتا تھا۔ آج اگر وہ خوشی انہیں نصیب ہوئی تھی تو فرخندہ چاہتی تھی کہ ان کی خوشی میں ان کے اپنے بھی شریک ہوں، اماں بھی ہوں، قطب الدین ہوں اور کرم دین۔ نہیں نہیں، خدا را وہ نہ آئے، ورنہ مرغ کا گوشت کھانے کو بھی کہیں جہنمیوں کا کھانا نہ کہہ دیں۔ توبہ توبہ، کرم دین سے تو دوری بہتر ہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں جو کرم دین کی اتنی عزت کرتے ہیں، ان کا حکم مانتے ہیں اور ان کے لیے کھانے پکا کر بھیجتے ہیں؟ شاید وہ کرم دین کو نہیں جانتے۔ اتنا دین تو پڑھ ہی رکھا ہے کہ وہ انسان ہی سب سے اچھا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ کرم دین سے اس کے خاندان والے تو ہرگز خوش نہ تھے، نہ اس کی بیوی زبیدہ، نہ اس کی بھابھی فرخندہ، نہ بھتیجی اور نہ ماں جیسی اماں بھی۔ کل ملا کر تو یہی ان کا خاندان بنتا تھا۔ ہاں صلاح الدین ان سے خوش تھے، اللہ ہی عقل دے، اور قطب الدین کو بھی اپنے باپ کی ساری عادتیں معلوم ہی تھی، بس وہ مجبوری میں خاموش رہتا ہے۔ فرخندہ نہ جانے کیا کیا سوچنے لگے اور اتنے میں وہ زیبو واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صندوق میں سے خاکی رنگ کی چادر نکالی کہ باہر جاتے ہوئے اوڑھ لے، اچھی بن کر جائے گی تو شاید قطبی کو بھی اچھی لگنے لگ جائے۔ لیکن قطبی تو کسی بھی عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، وہ شاید آج زیبو کو نہ دیکھے۔ اگر اس نے آج زیبو کو نہ دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں کی چمک بھی نہ دیکھ پائے گا۔ میرے ابا نے یہ زمین میرے نام کر دی ہے، دیکھ تو کہاں تک جاتی ہے، جہاں دیکھو فصلیں ہی فصلیں ہیں، بندہ عیش کر سکتا ہے عیش۔ شاہ نواز اب نوازا اپنے دوست ایاز کے ساتھ اپنے ابا کی زمینوں پر موجود تھا۔ ساری زمین پر فصلیں ہوا کے سازوں پر لہک رہی تھی۔ نوازے نے چٹا سفید کرتا شلوار پہن رکھا تھا، بال اس کے فصلوں کی طرح ہی لہک رہے تھے، داڑھی کی عجب ہی رونق تھی اس کے چہرے پر۔ واہ نوازے، تیرے تو مزے ہیں، بیٹھے بٹھائے اتنی زمین مل گئی تجھے، ایاز حسرت سے بولا۔ نوازا نہ کہا کر مجھے، وہ چڑ کر بولا۔ میرا نام شاہ نواز ہے، پورے پنڈ گاؤں میں کسی کا نام شاہ نواز ہے، پورے پنڈ میں کسی کا نام شاہ نواز، وہ اتراتے ہوئے بولا۔ اسے خود پر فخر تھا، وہ خوبصورت تھا، امیر تھا، کیا یہ کافی نہیں؟ لیکن اس کے اس غرور کو ملیا میٹ کرنے کے لیے زیب النساء نام کی لڑکی ہی کافی تھی، جو اس وقت گھر سے نکلی تھی تاکہ قطب الدین کو اماں کا پیغام دے آئے۔ باڑے مقدر کہ اب اسے راستے میں نوازے سے ملنا پڑے گا۔ یار پیار سے کہتے ہیں تجھے، پٹھے نام لینا تو پنڈ کا رواج ہے، سلامت کو سارے سلو سلو کہتے ہیں، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ ایاز نے کندھے اچکائے جیسے یہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کا نام سلامت ہے، میرا نام شاہ نواز ہے، اسے سلو ہی کہنا چاہیے جیسا اس کا نام ہے۔ میرا نام تو سب سے وکھرا الگ ہے، لیکن تم لوگ… اچھا بس بوتا شوخا نہ ہو، ایاز نے اسے چپ کروایا۔ یہ بتا کہ آگے کا کیا سوچا ہے تو نے؟ کی سوچا؟ زمین ہے اپنی، فصلیں اگتی ہیں، شہر جا کر بیچ آتا ہے بندہ، پسینہ چوڑا کر کے بولا۔
हाथ नवाबों की तरह पीछे बांध लिए, चिट्टा जोड़ा तो वैसे भी नवाब ही पहनते हैं। ओ साईं, यानी पागल, ये फसलें अपने आप ही उग जाएंगी, कोई देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। तुझे आता है ये काम? अयाज ने उस बावले को देखा जो सिर्फ जमीन देख देख कर खुश हो रहा था। उसे इतनी अकल नहीं आई थी कि जमीन पर काम करने के लिए एक बंदा दरकार है। आहो, वो आहो को लंबा खींचते हुए बोला, यूं तासुर दिया कि उसे भी इस बात का ख्याल है। मैं देखता हूँ कोई बंदा लब जाए, मिल जाए। उसे खुद पर शर्मिंदगी हुई कि वो इतना बेवकूफ़ है। हाँ, वो बहुत बेवकूफ़ था। वो किसी की भी खेल का हिस्सा बन जाता था और बन जाएगा। तू भी शैदाई है। अयाज ने उसकी कमर पर मुक्का मारा और भाग निकला। ओए, वो चिल्लाता हुआ उसके पीछे भागा। अयाज की हंसी की आवाज़ें उसे आ रही थी। खलो जा जरा, वो उसे रुकने के लिए कह रहा था लेकिन वो ना रुका। वो भागते रहे कि गली के मोड़ पर उसके कदमों को जंजीरों ने जकड़ लिया। उसे एक कदम भी ना हिला गया। सामने बनफ से नफीस ज़ेबो निसा बिनते सलाहुद्दीन खड़ी थी। सर पर खाकी रंग की चादर ओढ़े वो नवाजे के दिल को रौनक बख्श रही थी। ज़ेबो निसा, उसने धीरे से कहा। ज़ेबो गुस्से से उस अंधे को देख रही थी जो बच्चों की तरह गलियों में भाग रहा था। क्या ये उम्र थी पकड़न पकड़ाई खेलने की? नवाजे, अपनी उम्र देख और हरकतें देख, वो तपते लहजे में बोली। बंदा कुछ शर्म ही कर लेता है। ये कोई उम्र है तेरी बच्चों के साथ भागने की? उसने सर झटका। वो अयाज मुझे मुक्का मारकर भाग गया था तो मैं। ज़ेबो के सामने तो उसकी फरफर चलती जबान रुक जाती थी। कैसे लफंगे दोस्त बनाए मैं, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, सारी वेले निकम्मे। ज़ेबो ने कहा। ज़ेबो को नवाजा इतना बुरा भी ना लगे लेकिन उसके दोस्त उसे बहुत जहर लगते थे। उसे भाभी कहते थे और ज़ेबो को ये बात सख्त नापसंद थी। अभी पिंड में तो किसी को पता नहीं था कि नवाजा ज़ेबो को पसंद करता है सिवाय खुद नवाजे को और उसके दो निखट्टू दोस्तों को। ज़ेबो वहम मैं अपनी ज़मीनों पर था। मैंने तुझसे पूछा, मेरी तरफों आसमानों पर जा, मेरी तरफ से आसमान पर जा। चल हट अब, मैं अम्मा भी के घर जा रही हूँ। वो बोली। आसमानों पर जाने से उसका मतलब कहीं नवाजे की मौत तो नहीं थी, इसे कैसे पता हो? मैं छोड़ा हूँ, वो बोला। ज़ेबो उसके अंदाज में अपने लिए अपनाइयत देख सकती थी। क्यों? तुझे मेरे अब्बा ने मेरा मुहाफिज बनाया? मैं घर से कल ही आई हूँ, आगे भी कल ही चली जाऊंगी। परे हट, वो हाथ से पीछे हटने का इशारा करते बोली। नवाजा पीछे हट गया और ज़ेबो उससे दो कदम आगे बढ़ गई। वो कुछ बड़बड़ा रही थी, नवाजे को आवारा निकम्मा जैसे अलकाबाद से ही नवाज रही होंगी। ज़ेबो, उसने पीछे से आवाज़ दी। उसे रुकना पड़ा। उसके चेहरे पर वाज़े कोफ थी, उलझन थी कि ये ज़ेबो तो इतनी नाराज़ क्यों रहती है मुझसे? मैं और तू बचपन से तो एक दूसरे को जानते हैं, उसने पूछा। वो मध्यम लहजे में बात कर रहा था, वो जैसे महबूब के सामने सरे तस्लीम खम नहीं होता, बस वही। मेरी तुझसे केड़ा दोस्ती है जो नाराज़गी होगी? बचपन से जानती हूँ इसीलिए इज्जत से पेश आती हूँ, वरना तुझ जैसे निकम्मे को तो मैं मुंह भी ना लगाऊं। वो गुस्से से बोली। नवाजे को ये अल्फाज अगर कोई और कहता तो वो यकीनन पलट कर जवाब देता, लेकिन सामने उसका महबूब था। वो जो कुछ भी कहे बस कहती रहे और नवाजा उसे सुनता रहे। जेबो ऐसे ना किया कर, वो बोला। अंदाज में इल्तिजा थी शायद। देख नवाजे, तेरी बड़ी मेहरबानी है, मेरे मुंह ना लगा कर। मैंने गुस्से में तुझे कुछ उल्टा सीधा कह देना है, मैं आगे ही तपी पड़ी हूँ, मुझे ना बुलाया कर। कभी नईमा को तंग करता और कभी मुझे। मेरे अब्बा ने देख लिया ना, कभी तो तुझे तेरी ज़मीनों समेत झोंक से आल से बाहर फेंक देंगे। आया बड्डा, आया बड़ा। वो तनफन कर दी आगे को चली कि नवाजे को उसकी बातों का असर हुआ था या नहीं, लेकिन आज उसने ज़ेबो का दीदार कर लिया था, उसकी आवाज़ सुन ली थी। आज तो यही काफ़ी था। वो ज़ेबो के पीछे पागल था। ज़ेबो कुतुबुद्दीन के पीछे पागल थी और कुतुबुद्दीन, वो किसके पीछे पागल था? नहीं नहीं, वो इन फजूल कामों में नहीं पड़ता था, मगर उसे पढ़ना था, पढ़ना पड़ेगा इन्हीं फजूल कामों में। अम्मा भी, आप शादी पर किस वक्त जाएंगी आज? कुतुबुद्दीन अभी तक अम्मा भी से बातों में मशगूल था। वो काफ़ी देर से जुबैदा के बारे में ही बातें कर रहे थे। जुबैदा और अम्मा भी का प्यार कितना था अम्मा भी उसे बता रही थी। बस अब कुदरत के फैसलों के आगे तो इंसान बेबस है, वरना किसका दिल चाहता है कि उसका प्यारा उसे छोड़कर अगले जहान चला जाए। आहो, आज शाम नु मैं ते ज़ेबो, अम्मा बी ने कहा। सूरज अपने सवाल के करीब था तो धूप ऊपर सहन के मुख से में से अंदर आ रही थी। गर्मी भी कुछ ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अम्मा बी और कुतुबुद्दीन सहन में ही बैठे रहे थे। चाय के बाद अम्मा बी ने कुतुबुद्दीन को खाने का पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया। नाश्ता वो सुबह कर चुका था। अकेली जाएंगी, मैं छोड़ आता हूँ आप दोनों को, कुतुबुद्दीन ने कहा। नहीं वे, तेरे प्यो ने मेरा कत्ल कर देना है, अम्मा बी ने हंसते हुए कहा। पता लगे वो मेरा कत्ल कर दे कि मैं नच्चन गान जानती हैं। पता चले कि वो मेरा कत्ल कर दे क्योंकि मैं नाचने गाने जाती हूँ, उन्होंने इजाफा किया। अम्मा भी रहने भी दें, अब इतने भी बुरे नहीं हैं। कुतुबुद्दीन भी अम्मा भी की तरह हंसा। उसे बुरा नहीं लगा था क्योंकि वो अम्मा भी और अब्बा के सिफारती ताल्लुकात के बारे में खूब आगाह था। चल वे, उन्होंने हाथ छाड़ा। कब तक निकलना है? मैं छोड़ आऊंगा आप दोनों को, उसने फिर से पूछा। रहन दे पुत्र, असी टुर जावांगे, तो फिक्र ना कर।
वो पहले भी एक दो बार गांव से अकेली बाहर गई थी, अब एक बार और चली जाएंगी तो क्या नया है। नया तो इस सफर में बहुत कुछ होने वाला था, बस अम्मा भी बेखबर थी। असल में सभी बेखबर थे। अच्छा चले मैं चलता हूँ, अब जोहर का वक्त होने वाला है, कुतुबुद्दीन कहकर उठ खड़ा हुआ। आहो पुत्र, बड़ा चंगिया लग गया तो मैनू मिलन आया है। बड़ा अच्छा लगा कि तुम मुझसे मिलने आए। अम्मा बी ने उसके कंधे पर प्यार दिया। जीउंदा रहे, अल्लाह हयाती लंबी करे ते अपने प्यो नू अकल मत दे कि मैं नच्चन गान वास्ते नहीं जा रही। उंज रौनक मेला हो जाएगा बस। तेरा जेड़ा चाचा है सलाहुद्दीन हे पर जबर अकर बोली। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਏ। ਕੱਲ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਣ ਗਾਣ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਚੰਡ ਲਾਵਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਧੀ ਦਾ ਪਿਓ ਏ। ਅੰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਚੰਡ ਖਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਖੋਚਲ ਨੇ। जीते रहो, अल्लाह उम्र दराज करे और अपने अब्बा को अकल दो कि मैं नाचने गाने नहीं जा रही, वैसे ही रौनक मेला लगा होगा बस। और तुम्हारा जो चचा है सलाहुद्दीन, उसने भी कसम खा रखी है। कल वो भी मुझे नाचने गाने वाली कह रहा था। बेशरम ना हो तो दिल कर रहा था एक एक थप्पड़ रसीद करूं, लेकिन अब वो बड़ा हो गया, जवान बेटी का बाप है, माँ से थप्पड़ खाता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। दोनों ही बहुत पागल है। अम्मा बी ने सर झटका। कुतुबुद्दीन हंसने लगा। आपको तो पता ही है अम्मा भी कि उन्हें गाना बजाना नहीं पसंद। मौलवी हैं वो मस्जिद के, अब वो कुछ तो वो बोलेंगे ही। दूर फिटे मुंह, ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਭਲਾ। ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਗਾਣ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਝੋਕ ਸਿਆਲ ਆਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ नहीं कहते। ये क्या तरीका है भला। मुंह उठाकर बड़ी अम्मा को नाचने गाने वाली कह दिया। मैं उन्हें कितने सालों से जानती हूँ, जब से वो झोंक से आए हैं, फिर भी उनको ख्याल नहीं है कि माँ को ऐसे नहीं कहते। वो बुरा मानते हुए बोली। अच्छा अम्मा भी, मैं कह दूंगा, कुतुबुद्दीन ने कहा और बाहर की तरफ चला गया। वो जानता था कि वह अब्बा से इस बारे में अगर बात करेगा भी तो वो भी उसे ही गलत कहेंगे। अपनी गलती तस्लीम करना उनकी फितरत में हरगिज ना था। वे ऐसे जाहिर करते थे कि उन्होंने कभी कोई गलती ना की हो। गलती? और जो गुनाह उनसे हुए थे, उनके बारे में उनका क्या ख्याल है। कुतुबुद्दीन के दरवाज़ा खोलने से पहले ही किसी ने दरवाज़ा खोल दिया था। सामने ज़ेबुन्निसा थी। कुतुबुद्दीन के दरवाज़ा खोलने से पहले ही किसी ने दरवाज़ा खोल दिया था। सामने ज़ेबुन्निसा थी। कुतुबी ने एक नज़र उसे देखा और नज़रें झुका लीं, मगर ज़ेबो ने कई नज़रें उसे देखा और नज़रें बुलंद ही रखीं। अभी कुतुबी ने उसकी आंखों में रात वाला तासुर नहीं देखा था। कैसे हो कुतुबी? ज़ेबो ने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? उसने कहा। मैं भी, ज़ेबो ने कहा। वे कौन है? अंदर आ। अम्मा भी के इस्तफसार पर वो दोनों वापस अंदर चले गए। कुतुबी जाने लगा, लेकिन ज़ेबो ने उसे रोक लिया। ज़रूरी बात है, रुकना, उसने कहा। अम्मा भी वापस मंजी चारपाई पर बैठ गई। हाथ में फिर से वो कपड़ा पकड़ लिया जिसका टांका उधर चुका था। याद ही न रहा कि कुतुबुद्दीन से ही सुई में धागा डलवा लेती। चलो अब ये काम ज़ेबो करेगी। कैसी हैं अम्मा भी? ज़ेबो और अम्मा भी ने एक दूसरे का हाल दरियाफ्त किया। पुत मैं चंगी भली नी गल सुन, ए जरा धागा पा दे सुई च, मेरे ते हुण नज़र ही काम नहीं करती। बेटा मैं अच्छी भली बात सुनो, ये जरा सुई में धागा डाल दो, मेरी तो अब नज़र ही काम नहीं करती। अम्मा बी ने कहा। कुतबी पुत्र तू गया नहीं हाले? अम्मा बी ने अकब में खड़े कुतुबुद्दीन को देखा तो पूछ बैठी। ज़ेबो ने इतने में उनके हाथ से सुई धागा ले लिया था। नहीं, वो ज़ेबो ने रोक लिया था। कहती है कोई बात करनी है उसे। क्या बात है ज़ेबो? कुतुबुद्दीन ने कह दिया। ज़ेबो को तो अच्छू लग गया था। पागल कुतबी ने अम्मा बी के सामने ही कह दिया। नहीं वो, हाँ हाँ। ज़ेबो खजल का शिकार हुई। उसकी चादर कुछ सरक गई थी जिसे उसने फौरन दुरुस्त किया। वो ना, हाँ वो अम्मा ने कहा था कि तुमसे कह दो। उससे बोला ही ना जा रहा था। असल में उसने सोचा था कि वो कुतुबुद्दीन से इस बात के बहाने कुछ और बातें भी कर लेगी, ऐसे उसके साथ वो कुछ वक्त गुजार लेगी। लेकिन मासूम कुतुबुद्दीन ने उसे यह मौका दिया ही नहीं था। सारा मनसूबा खाक में मिलिया मेट हो गया था। क्या? दस भी दे, बता भी दो। अम्मा भी और कुतबी बैक वक्त बोले। वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि ज़ेबो की बेरब्तगी की आखिर वजह क्या है। वो अम्मा कह रही थी कि आप दोनों आज दोपहर का खाना हमारे घर से खाएं। मैं आप दोनों को यही पैगाम देने आई थी। ज़ेबो ने बात मुकम्मल की और इसी दौरान उसका ध्यान सुई धागे से हट गया। धागा तो सुई में ना घुसा, लेकिन बेदहानी में सुई ज़ेबो की उंगली में पूरी चुभ गई। उसने बेख्तियार हाय किया। हाय नहीं, फेंक के। अम्मा बी ने फौरन परेशानी से कहा। ज़ेबो अपना हाथ हवा में लहराने लगी। ऐसा करने से दर्द की शिदत में कमी वाक़ हो जाती है। बस ध्यान ही नहीं रहा, ज़ेबो ने कहा। ध्यान रखा करो ज़ेबो। कुतुबुद्दीन ने सारे मंजर में दूसरी बार उसे देखा था। इस बार ज़ेबो और उसकी निगाहें टकराई थीं। ज़ेबो की आंखों में कलवली चमक अभी तो नहीं थी। मैं चलता हूँ अम्मा भी, शाम को ज़रूरत पड़ी तो बुला लेना। ज़ोहर के बाद चचा के घर मिलते हैं। वो कहकर सलाम करता चला गया। अम्मा बी ने उसे दुआ दी। ज़ेबो उसी एक लम्हे में कैद होकर रह गई थी। कुतुबुद्दीन के अल्फाज उसे बार बार सुनाई दे रहे थे। वो सुई की चुभन भुला बैठी थी। अब उसे मोहब्बत की चुभन हो रही थी जो उसे बेचैन किए हुए थी। बेचैन, मोहब्बत में बेचैनी असल में पुरसकून होती है।
बड़ा बीबा मासूम और अच्छा बच्चा है कसमें। अम्मा भी ने कहा, जुबैदा ने हीरा जमे है, जुबैदा ने हीरा पैदा किया है। कोहिनूर, ज़ेबो ने ज़ेरे लब कहा। अम्मा भी सुन ना सकी। इधर फड़ा दे हुन। अम्मा ने उसे सुई धागा मांगा तो ज़ेबो ने एक पल में धागा डालकर उन्हें दे दिया। अम्मा भी ज़ेबो से हल्की फुल्की बातें करती रहीं। ध्यान उसका कुतुबुद्दीन की तरफ ही था। हाय काश काश कि वो भी ज़ेबो से मोहब्बत करने लगे। तुम करो मेरे साथ गलत तो क्या हुआ? तुम्हें ना दुनिया ने देखा ना दुनिया वालों ने। तुमने पहुंचा दिया मुझे ऐसे हाल में जालिम कि अब मैं बेहाल हूँ जालिम। तुमने मेरे जख्मों को खुरच डाला है इंसान। तुझे भूल गया कि तू इंसान है ना कि हैवान। मैं जाऊं कहाँ इस भरे जहान में। तेरी बदौलत मेरा कोई ना बचा है इस जहान में। मेरे अपने ना जाने कि मैं किस हाल में हूँ। तूने मुझे सबसे दूर किया कि बता ना सकूं मैं इस हाल में हूँ। तुम्हें गुमान है कि तुम बच निकलोगे, इस बदले के चक्कर में तुम भी मरोगे।